Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. And today we are going to start the next topic, that is breathing mechanism. We have discussed the human respiratory system in previous videos. Now we are going to start the mechanism, the process breathing. So breathing, what do you mean by breathing? Firstly, we know what is the breathing. Breathing is the process of exchange or movement of air in and out of the lungs. That means the coming out and the released out of the air in the lungs is called breathing. The rate of breathing in rest position. In rest position, that means in normal position without any physical activity, is 12 to 14 in adults, and it is more in infant or newborn baby, that is 40 to 60. The breathing rate in newborn baby is more than adults. Breathing process involves two steps or two processes. First is inspiration, which is also called inhalation, and expiration, which is also called exhalation. Inspiration, that means taking in of air into lungs. In this process, air is taken out in the lungs, and exhalation, the air is released out from the lungs. It is active process. What is the meaning of active process? Active, that means the energy is required or energy is spent to take oxygen, to take air from the atmosphere into the lungs. And exhalation is the passive process in which no energy required, no energy spent, because in this process all muscles becomes relaxed, and in relaxed position energy is not spent. Inhalation process is required. Inhalation process, the thoracic cavity becomes wider, and in exhalation the thoracic cavity becomes normal. Respiratory muscles which are involved in the process of breathing, there are basically two muscles. First is phrenic muscles, which are found attached to diaphragm and which are found in ribs and vertebral column, which are responsible for movement of diaphragm. And next muscles are external intercostal muscles. There are two intercostal muscles, external and internal. And external intercostal muscles are found between the ribs. There are 12 pairs ribs in our body, in our rib cage, and between the ribs, in slanting forward position they are found, and they are responsible for slanting forward and downward direction movement of ribs. The ribs are 12 pairs and muscles are 11 pairs in number. Now next is the mechanism of breathing. I have done this process in a flow chart type. This is the inhalation process and this is the exhalation process. Inhalation process, firstly the phrenic muscles contract. जो phrenic muscles हैं वो क्या करेंगी, contract करेंगी, जिसके contract करने से diaphragm की जो है movement होगा और diaphragm becomes straight, because diaphragm in normal position is dome shaped. That means this type, dome shaped, this type. And when the phrenic muscles contract, this dome shape, this diaphragm becomes straight. When the diaphragm straight, thoracic cavity enlarges, and along this process the external intercostal muscles which are found in between of the ribs also contract, and due to this contraction of muscles, ribs move in upward.
अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड रिब्स क्या होंगी, ऊपर की तरफ भी जाएंगी और बाहर की तरफ भी निकल जाएंगी। तो जैसे अगर आप ये समझ रहे हो कि ये रिब केज है, तो रिब केज की वजह से क्या होगा, ये आप ऐसे समझिए, ये रिब केज है तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी और बाहर की तरफ जाएंगी, तो जिससे क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। तो जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, एयर का जो प्रेशर है लंग, जहाँ पर थोरेसिक कैविटी के अंदर ही लंग्स हैं, तो लंग्स में प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा। और हमेशा जब भी एयर का मूवमेंट होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होगा। तो जैसे ही वैक्यूम टाइप क्रिएट होगा लंग्स के अंदर, तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो क्या होगी, एक तरह से सक्ड आउट होगी इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर खींच ली जाएगी। तो ये फोर्सफुली होगा। और इसमें क्योंकि एक्टिव प्रोसेस हमने इसलिए कहा क्योंकि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे फ्रेनिक मसल्स हैं या फिर इंटरकोस्टल मसल हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो इनके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी जो होगी यूज़ होगी। तो ये एक तरह का पूरा इनहेलेशन का प्रोसेस है जिसमें मसल्स जो हैं दोनों की दोनों टाइप की मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में याद रखेंगे एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट जो है, जो इनहेलेशन के बाद होगा, इसके बाद जैसे ही एयर लंग्स में पहुंचेगी तभी उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, लंग्स की, यानी लंग्स की कैविटी में आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन थी, जो इनहेल्ड एयर थी, उसकी ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाएगी। तो अब क्या हो गया, वो जो एयर अब लंग्स में है वो फाउल एयर है, और इस फाउल एयर को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो ये जो फाउल एयर है इसको बाहर निकालना इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो अब कैसे एक्सहेलेशन होगा, जो फ्रेनिक मसल हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी इनहेलेशन के टाइम, अब ये रिलैक्स पोजीशन में आएंगी। इनके रिलैक्स होने से जो डायफ्राम सीधा हो गया था, स्ट्रेट हो गया था, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल का मतलब है डोम शेप्ड हो जाएगा। और थोरेसिक कैविटी जो थी उसकी जो अगर हम कंपैरिजन करें इनहेलेशन के टाइम में और नॉर्मल टाइम में, तो डिक्रीज़ होएगी, लेकिन थोरेसिक कैविटी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इसके साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ द टर्न इज ऑफ इंटरनल कोस्टल मसल। तो इंटरनल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिकम्स नॉर्मल। ड्यू टू दिस रिब्स कम इन नॉर्मल पोजिशन, and when the ribs comes in normal position and diaphragm also comes in normal position, the volume of thoracic cavity becomes normal, that means less than at the time of inspiration. Due to this, तो जो प्रेशर है it becomes high than जो outer atmosphere है, then it push the foul air to outside from the lungs. तो lungs से foul air जो है वो बाहर की तरफ पुश्ड आउट जाएगी। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नाउ सम टर्म्स आर देयर इन योर NCERT बुक which is called respiratory volumes and capacities. It is also called pulmonary air volumes and lung capacities. Some terms are used. First is tidal volume. Tidal volume means it is the volume of air, normal volume of air during normal inhalation or exhalation in resting position. रेस्टिंग पोजीशन का मतलब आप स्लीपिंग या लेटने से नहीं लेंगे। रेस्टिंग पोजीशन का मतलब होता है बायोलॉजी के टर्म में विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी है, हार्ड एक्टिविटी नहीं है। तो जैसे आप बैठे हैं नॉर्मली कोई वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्टिंग पोजीशन। तो ये क्या वॉल्यूम है एयर का, वो वॉल्यूम जो हम अब नॉर्मली नॉर्मल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के टाइम जो है अपनी ब्रीदिंग में लेते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इट इज़ एवरेज हम बता रहे हैं, सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो एवरेज इज़ 500 ml। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, तो जिसमें से
जब ये टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि लंग्स में के अंदर हमने इनहेल की या जितनी एक्सहेल की, तो ये 500 ml जो वॉल्यूम है एयर का, इसमें से जो 350 ml ही जो है वॉल्यूम एयर का एल्वियोलाई तक पहुंच पाता है, तो इट इज़ कॉल्ड एल्वियोलर वॉल्यूम। और 150 ml जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाता है, जैसे ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, बहुत सारा रेस्पिरेटरी ट्री हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो उस ट्रैक में 150 ml जो है वो रह जाता है, तो लंग्स तक पहुंचा कितना, 350 ml। नेक्स्ट टर्म दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम IRV। तो ये क्या है, रिजर्व से ही क्लियर हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी टेकन इन, क्या याद रखेंगे, टेकन इन, यानी कि जिसे हम नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, आपने नॉर्मली इनहेलेशन कर लिया है, तो नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद आप फिर फोर्सफुली आप जो है वॉल्यूम जो ले रहे हो एयर का, उसको बोलते हैं IRV, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी टेकन, जो आप ले सकते हो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद। तो IRV जो है अबाउट, यानी कि एवरेज या अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2000 से लेकर के 3000 मिलीलीटर तक। नेक्स्ट टर्म इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट मीन्स IC। ये क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये क्या है कि आप जितना भी वॉल्यूम है, आप जो आपने जैसे नॉर्मल एक्सपायर कर लिया, ठीक है, यानी कि फोर्सफुली आपने एक्सपायर नहीं किया है, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आपने जितना टोटल वॉल्यूम एयर आप इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो जो हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं यानी कि टाइडल वॉल्यूम, और प्लस IRV, जिसको हमने भी क्या कहा था कि हम जो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, कितना इनहेल कर सकते हैं, तो इन दोनों को मिला के हमारा हो जाएगा IC, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि हम कितना से ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा एयर को टेक कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया हो। क्योंकि ये बात आपको इसलिए समझ में अभी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी लंग्स में एयर जो है लंग्स के अंदर बची रहती है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम हम लोग ले सकते हैं, तो वो जो वॉल्यूम है वो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये टोटल मिलाकर के हो गया ये अबाउट, यानी कि बोल सकते हैं आप इसको 2500 to 3500 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे कि ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, तो ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही बात रहेगी। ये एक्सपिरेटरी है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड, यानी कि जो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन किया आपने, लेकिन नॉर्मल इंस्पिरेशन में तो आपने 500 ही लिया, लेकिन आप नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक्सहेल्ड कर सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो है इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो है हमारी 1000 to 1500, यानी 150 ml। तो ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है टाइडल कैपेसिटी। टाइडल कैपेसिटी का मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का, तो वो जो आपने फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, यानी कि जो आपका रेजिडल वॉल्यूम था वो भी आपने लंग्स से निकाल दिया, तो इस तरह से उसके बाद
जो वॉल्यूम हम लोग कोई भी पर्सन क्या है फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद जितना वॉल्यूम एयर का ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेट कर सकता है या फिर एक्सपिरेट कर सकता है, उसको बोलते हैं उसकी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, ERV का क्या मतलब हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमारी लंग्स में हमेशा बचा रहता है, एंड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल मिला के हमारा हो गया 3500 से लेकर के 4500 तक वेरी करता है। नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, यानी कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तब भी कुछ वॉल्यूम हमारी लंग्स में रह जाता है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 मिलीलीटर। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर विद आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि आपने किया तो नॉर्मल इंस्पिरेशन है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वॉल्यूम एयर का नहीं लिया, लेकिन उसके बाद आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम और साथ में आएगा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू क्योंकि पीछे से जब आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली वैरी करती है 1500 to 2000। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो नॉर्मल एक्सपिरेशन आपने किया तो जितनी भी वॉल्यूम थी जो एयर की तो वो लंग्स में बचती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये होती है आपकी ERV प्लस RV, और टोटल इसका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 2500 इसका मिलीलीटर एवरेज हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में आता है TLC, दैट मीन्स तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट, यानी कि जितना भी वॉल्यूम हमने अकोमोडेट किया है लंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, पूरी ताकत लगाने के बाद हमने जितनी इंस्पायर की लंग्स के अंदर, तो वो होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हमारी कितनी होती है, तो RV प्लस ERV प्लस TV एंड प्लस IRV। तो टोटल मिलाकर आप ये कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। तो क्योंकि वाइटल कैपेसिटी तो वही है जितना हम मैक्सिमम वॉल्यूम बॉडी के अंदर ला सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा रिजर्व वॉल्यूम ऑलरेडी प्रेजेंट है, लंग्स में हमेशा रहता है, तो उसको मिला करके हमारी हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, और ये होती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जो है तो वो होती है हमारी 5800। तो ये थे कुछ हम लोगों की टर्म्स आती हैं यहाँ पे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ में, वॉल्यूम्स में। तो इसको इजीली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको इजी जो ट्रिक है लर्न करने की वो मैं आपको एक वीडियो भेज दूँगी जो क्विक आपको याद करवा देगी। तो मैंने कुछ वीडियो आपको एनिमेशन वीडियो भी भेजी है, तो उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म होता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।